ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಭಾಗವ ಹೆಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪಾಸು ಫೇಲು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಜೀವನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂಕಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿ. Hello dear students, welcome to Parikshavani Social Science. In this recapitulation episode in geography, you are going to learn all the 12 lessons. But today in this episode, I am going to teach you the first 5 lessons in geography. Once again, I welcome you all to this recapitulation classes. My suggestion is you need to keep the textbook and a notebook open and follow the instructions. Dear students, please don't forget this is an orientation class in the examination point of view. I may not tell you everything in detail, but certainly there are certain important points in the examination point of view. Please make note of them. First of all, in geography, the first lesson, Indian position and extension. In this lesson, you are going to study all this which you are seeing on the screen, right? We learn about the extent of India, Indian position, correct? The location of India in Asia and the whole world. Likewise, the frontiers of India, right? The land border and the sea border, everything you are going to discuss in this very simple small lesson. The main land of India is situated between 8 degree 4 minutes north latitude to 37 degree 6 minutes north latitude. Likewise, from east to the west or from the west to the east, I tell you, 68 degree 7 minutes to 97 degree 2 minutes 5 seconds east longitude. So, this is what the extension of India. And see here, this is the map, and two important things you need to locate here, Indira Col and Indira Point. Indira Col is at the top, you know, Jammu Kashmir, the tip of Jammu Kashmir, right? This is the northernmost tip of India, and Indira Point is at the southern tip of Greater Nicobar Islands. So, these things you need to keep in memory. Now, let us continue our discussion, and Indira Point and Indira Col's location very important in the examination point of view. Now, let us continue to know the frontiers of India. India, it has both land border as well as sea border. 15,200 kilometers of land border, 6,100 kilometers of sea border, including Andaman Nicobar and Lakshadweep, it goes to 7,516.5 kilometer. Next, India is a peninsula of Asia. You know that it is surrounded by water in 3 sides: Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south, the Bay of Bengal in the east. These are the water frontiers of India. And you know that which are the neighboring nations, right? Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, Bangladesh and Myanmar in the east, and Sri Lanka in the southeast. They are the neighboring nations. So, this is located here, right? India map, the neighboring nations of India. Now, let us see, India is divided for the administrative purpose into
28 states and 9 union territories, and Delhi is our national capital. Telangana is recently added state, and Rajasthan, it is a very vast state, largest state in India, and Goa is the smallest state. Let us go to the next lesson, Indian physiography, very important. You may have 2 marks direct question from one of the physical features of India. Let us discuss. You are going to discuss about the general features of the landforms of India, physiographic divisions, right? Important features of the physical divisions. All these you are going to discuss in this lesson. In addition to that, the coastal plains, the mountains, the valleys, how they are going to impact on agriculture, natural vegetation, everything, right? Let us go to the physical divisions of India. On the basis of physiographic features, India can be divided into 4 major divisions. You can see them on the screen: the northern mountains, the northern Great Plains, the peninsular plateau, the coastal plains and islands. Let us discuss one by one, right? The northern mountains. Dear students, the northern mountains comprise of the Himalayas, which are group of young fold mountains. You all know that. It includes highest peaks, deep gorges, glaciers, mountain passes, and etc. It also includes, right, glaciers like like Gangotri Glacier as well as Yamunotri Glacier, etc. The northern mountains extend almost about 2400 kilometers from Hindu Kush mountains to the eastern part of India, almost to the Brahmaputra valley, correct? Let us go to the next feature of the northern mountains. On the base of the height of the mountain, keep this in mind, on the base of the height of the mountain, Indian northern mountains are classified into Greater Himalayas, Lesser Himalayas and Shivaliks or Outer Himalayas. Let us discuss one by one. The average height of the Greater Himalayas is about 6100 meters. They have highest peaks, right? Mount Everest, it is the highest peak in the world, like Kanchanajunga, Makulu, Dhaulagiri, etc. Next, Gangotri, Yamunotri glaciers give birth to river Ganga and Yamuna respectively. Burzil, Lozila and Shipkila, these are the mountain passes. And in the Trans Himalaya, that is to the north of the mountain, north of the Himalayan mountain, we have Karakoram range, and in this Karakoram range we have Mount K2 or Mount Godwin Austen, and it is the highest peak of India, right? Now let us continue to know the Lesser Himalaya. Lesser Himalaya, it is having almost 4500 meters to 6000 meters in height. It has Kashmir Valley, Kangra Valley and Kulu Valley. Shimla, Ranikhet, Mussoorie, Nainital, Darjeeling, all these are hill stations here, right? Next, Shivaliks. You know, dear students, Shivaliks are also called Outer Himalaya. They are also called young fold mountains because they are recently formed. And these Shivalik mountains, right, range from 600 to 1500 meters. And you can see here the 3 range of northern mountains. And in this Shivaliks you have dunes. Dehradun is the best example. Now let us continue to know the importance of Himalaya. Quite often this question is asked, right? And in many number of previous question papers, the importance of Himalaya, is asked. So please throw light upon this. You know very well, they prevent cold winds blowing from Central Asia, correct? They obstruct the rain bearing winds and cause heavy rainfall. And on the slopes of the Himalaya, we have many plantation crops, for example, tea in Assam, correct? Likewise, many rivers take birth here, correct? These rivers are helpful both for agriculture
as well as generation of hydroelectricity. Let us continue our discussion to know the second physical feature of India, the Northern Great Plain. Northern Great Plain, you know very well, it lies between Himalayas and plateau of peninsula, right? And this is formed by the river Sutlej, the Ganga and Brahmaputra, correct? They are formed by the depositional work of these three rivers, Ganga, Brahmaputra, Sutlej. It covers an area of almost about 7 lakh square kilometer. Please make note of these. Let us see about northern plains. The northern plains are very fertile. It is fertile and suitable for agriculture. The land is level. It supports a network of roadways, railways and a good means of communication. They are also useful for industrialization, right? And urbanization and trade. Now, let us know about the third physical feature of India, that is the peninsular plateau. This peninsular plateau, it is seen in almost about 16 lakh square kilometer of India, correct? This is the largest physical division of India. Dear students, keep this in mind. It is the oldest landmass too, right? It was a part of Gondwana land, right? It is roughly in a triangular shape, surrounded by many number of mountains. You can see all these Aravalis, Vindhyas, Western Ghats, Eastern Ghats, etc. surround the plateau of peninsula, right? The Aravali range is in the northwestern part of India, correct? In this Aravali range, you have highest peak, that is Mount Guru Shikhar, and Mount Abu is a hill station, right? Let us continue our discussion. In this south, you have the Western Ghat, correct? In the Western Ghat, you have Bor Ghat, Tal Ghat and Pal Ghat. They are the mountain passes across the Western Ghat. In south, Anaimudi is very important, and this is in Annamalai range. The height of Anaimudi is about 2695 meters from sea level, right? It is the highest peak of South India. Now, let us know about the difference between the Western Ghat and the Eastern Ghat. Dear students, quite often this question is asked in the examination point of view. You know that Western Ghats are continuous, Eastern Ghats are not continuous because they are separated by the peninsular rivers like river Godavari, Krishna, Kaveri and their tributaries, correct? Western Ghats are higher, Eastern Ghats are not higher. Western Ghats are closer to the sea, Eastern Ghats are not closer to the sea. So, this is what the difference between the Western Ghat and Eastern Ghat. And you know that Armakonda is the highest peak in the Eastern Ghat, and the Western Ghat is also called Sahyadri. Now, let us continue to know the importance of plateau of peninsula. This plateau of peninsula has a deep influence on the agricultural life of people. This plateau is rich in minerals, so it helps industrialization too. It is surrounded by, or it has thick forest and rich biodiversity. Make note of all these, dear students. You may have a question on the importance of plateau of peninsula. It has the influence on southwest monsoons too, correct? And it is covered with black soil, which is very much useful for agriculture, right? Now, let us know some other important points of plateau of peninsula. It has many South Indian rivers which almost originate on the western part of Western Ghat, right? They help in the generation of hydroelectricity, correct? And you have a hill station, famous hill station, Ooty, right? Let us see next the fourth physical feature of India, the coastal plains. The plateau of peninsula India is fringed by coastal plains on either side. It extends from the Rana of Kutch in Gujarat and almost the delta of Ganga in the east, correct? They are divided like western coastal plain and the eastern coastal plain.
And this is the difference between the western coastal plain and the eastern coastal plain. The western coastal plain, it is steep and rocky. The eastern coastal plain, right, it is between the Bay of Bengal as well as the plateau of Peninsula, right. The river Mahanadi, Godavari, Krishna, right, Kaveri have formed deltas here. The eastern coastal plain is seen right from Suvarnareka or Subarnareka to Kanyakumari, right. So, these are the differences that you need to make note of. Now, let us continue. In this eastern coastal plain, you have three important lakes, Chilka Lake, Pulicat Lake, Lake Kolleru, right. And the western coastal plain is divided into Konkan coast, Karnataka coast, Malabar coast. The eastern coast is divided like Coromandel coast and Northern Sarkar. Please make note of all this, draw a neat diagram and locate all these, very important in the examination point of view. Now, let us know the importance of coastal plain. There are many ports, namely Kandla, Mumbai, Mamagova, Kochi, Vishakhapatnam, Kolkata, etc. They are useful not only for fishing but also for shipbuilding. And agriculture, coastal alluvial soil helps agriculture activity. And production of salt is one of the important occupations, right. There are many beaches attract tourists, right. Yes, you can locate all the ports on the map, right. Dear students, let us know about islands of India. You know that there are about 247 islands in total, of which 204 are in the Bay of Bengal and 43 are in the Arabian Sea, right. And these are the information that you need to underline, right. Now, dear students, let us go for unit number 3, Indian climate, very important in the examination point of view. Let us see Indian climate. In this chapter, we study about climatic type of India and the factors which affect it, correct? Climatic seasons and their characteristics and distribution of rainfall in our nation. All these points you are going to discuss in the lesson number 3, Indian climate. Dear students, you know that India has tropical monsoon type of climate, correct? Right. Because the greater part of India lies in the tropical zone, please do not forget it. The greater part of India lies in the tropical zone and our climate is greatly influenced by monsoon winds. Please make note of all this. Let us continue our discussion. The main factors which influence on the climate of India is location, India's location, that is at the center of northeastern hemisphere, correct. Water bodies, that is 3 water bodies surrounding, relief features, monsoon winds. All these factors influence the climate of India, correct. Next, climatic seasons. Dear students, the 12 months of our English calendar is classified into winter season, December to February, summer season from March to May, rainy season from June to September, retreating monsoon is from almost mid of September to November. So, these are the 4 seasons, climatic seasons of our nation, right. Let us discuss one by one. Winter season first of all. In winter, temperature goes low. You know why? Because the rays of the sun fall vertically over southern hemisphere and India gets oblique rays because India is in the northern hemisphere. Please make a note of it. Temperature goes low. January is the coldest month and sky is very clear. Dear students, you know Dras near Kargil, it has recorded the lowest temperature minus 40 degrees Celsius, right. And India gets only 2% of rainfall in this winter season. And some of the places like higher altitude places get snowfall. Now, let us go to summer season. In summer season, temperature goes high because India gets vertical rays of sun, correct. India gets vertical rays of sun, the temperature goes high. And in our nation, Rajasthan,
right? Particularly in Rajasthan, Ganganagar, it has recorded highest temperature, that is 49.4 degrees Celsius, right? And India receives convectional rainfall, particularly, and even local heating rainfall, correct? Local heating rainfall, that is rainfall in summer. Local heat rainfall is called by different names in different states. On this in Uttar Pradesh, Kala Baisakhi in West Bengal, mango showers in Kerala, coffee blossoms in Karnataka. Why the name coffee blossoms for the rainfall in Karnataka in summer, and why mango showers? Yes, it is displayed on the screen because particularly it is beneficial to coffee crop. That is why it is called coffee blossoms, and the rainfall, timely rainfall is beneficial for mango crop. That is why mango showers in Kerala. India receives 10% of rainfall in this summer season. Now, let us continue to know rainy season. Dear students, due to high temperature at the center of India, say Madhya Pradesh, right? When center of India develops high temperature, pressure goes low. When the pressure goes low, the winds from the high pressure, that is from the Indian Ocean, right? Winds from the high pressure area rush towards the low pressure area. The triangular shape of India divides that southwest monsoon into two branches. One is Arabian Sea branch, other one is Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch strikes the western side of Western Ghat and cause heavy rainfall, right? And the Bay of Bengal branch, it blows over Tamil Nadu and it is prevented by the northeastern mountains and Himalayas and cause heavy rainfall to India. India receives almost 75% of rainfall in this season. Please make note of all this. Now, let us see the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch, right? Mausinram, it receives highest rainfall in India, right? Almost 1141 centimeters of rainfall. Let us continue to know the retreating monsoon season. Students, you know that retreating monsoon season is from mid of September, October and November, right? In this season, temperature is low whereas pressure is increased. Due to the increase in pressure, the monsoon starts moving back. A low pressure area is developed over Bay of Bengal. That is also very important, and as a result, the southwest monsoon starts to retreat and it blows from northeast. That is why it is also called northeast monsoon season. India receives 13% of rainfall in this season, especially the eastern coastal places like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and few parts of Odisha get heavy rainfall. Let us continue our discussion to know the distribution of rainfall. Dear students, areas with low rainfall, right, it receives less than 50 centimeter. Areas with medium rainfall 50 to 100 centimeter. Area with heavy rainfall 100 to 250. Please keep open the textbook and which are those areas receive medium rainfall, heavy rainfall and low rainfall. All these you need to make underline. At least two examples for these you need to know, right? Let us continue our discussion to know the places, particularly the western parts of Kutch, the Thar desert, the western Punjab, Haryana, all these receive very, the low rainfall. The area of northern Punjab to Cape Kanyakumari receives medium rainfall. And the western Ghat, western part of Western Ghat, Himachal Pradesh, northern part of Uttar Pradesh and West Bengal, northeastern part of India, Andaman and Nicobar Islands, Meghalaya receive heavy rainfall. Please make note of all these. Thank you. Let us go to the new lesson, Indian soils, unit number 4. Very simple, very easy and scoreable lesson is Indian soils. You are going to know the distribution of soil, the crops that we cultivate in these soils and soil erosion, causes for soil erosion and measures to conserve soil. Let us continue.
Meaning and importance. What is soil? Soil is a thin surface. Soil is a thin surface layer of the earth comprising of closely intermixed mineral and organic substances. Right. Very important natural resource, because India's agriculture depends on the quality of soil, health of soil. Agricultural production is basically dependent on the fertility of soil, correct? Let us know about the soil formation of India, and it is mainly related. The soil formation is influenced by the parent rock, relief features, climate and natural vegetation. Please make note of all those. And now let us see the types of soil: alluvial, black, red, laterite, desert soil and mountain soil are the types of soil. Let us continue to know each of the soil. Dear students, in this table you can see soil, how it is formed, the crops which we cultivate and places. If you make a table like this, you can answer any of the question related to any of the soil, right? Let us see alluvial soil. Alluvial soil is formed from the sediments deposited by the rivers. Paddy, sugarcane, cotton, etc. can be cultivated. About 15 lakh square kilometer, particularly in Indo-Gangetic area, is found with alluvial soil. Let us go to the next soil, black soil. Black soil is also called Rigur soil or black cotton soil. You can find it in Maharashtra, Telangana and northern part of Karnataka, etc. And the very important quality that you need to underline is black soil is highly retentive of moisture and extremely compact. That's why you can grow many number of crops like cotton, sugarcane, jowar, maize, pulses, etc. And it is derived from the basalt rock, right? All these points you need to underline. Let us go to the next soil, red soil. Red soil is formed from weathering of granite or gneisses and crystalline rocks, we say. And 5.2 lakh square kilometer of area is found with red soil, that is in the Eastern Ghats, Meghalaya Plateau, Vindhyas and Satpura. Now let us go to laterite soil. Dear students, laterite soil is found where there is high rainfall and high temperature, right? In that condition, laterite soil is formed. It is found almost in 2.48 lakh square kilometer of area. Cashew, rubber, tea and coffee are grown here, right? And let us go to the next soil, desert soil. Desert soil is formed where there is high temperature and very low rainfall. In India, 1.42 lakh square kilometer of area is found with desert soil. Dates, date palm, cactus, deep rooted plants are found here. Example, Thar desert of Rajasthan, etc. Now mountain soil. Mountain soil is formed by the decomposition of organic matter, hence they are rich in humus, right? Coffee, tea, fruits are cultivated here. About 2.85 lakh square kilometer of area is found with mountain soil. Now let us know about soil erosion. Dear students, what is soil erosion? Soil erosion refers to the removal of the top soil by natural agents like rivers, glaciers, winds, sea waves, etc. Right? And it is one of the important problems of our Indian agriculture. Right? Now, causes for soil erosion. What are those? Deforestation, overgrazing by the cattle, shifting cultivation, faulty method of cultivation or unscientific method of cultivation, use of the top soil for making bricks, tiles, etc. All these causes for soil erosion, make note of them. Let us see effects. Definitely the yield in the agricultural field, right? Definitely loss of soil fertility and lead to fall in agricultural productivity. It leads to silting and floods, change of the course of the rivers and reduction of the capacity of reservoirs. Due to the accumulation of silt in the tanks, due to the accumulation of the silt in the rivers, the reduction of the capacity of reservoir, right, also high.
groundwater level is lowered and there is decrease in soil moisture. All these are effects of soil erosion. Now let us know how to conserve soil. When soil is that much important for Indian agriculture, how to conserve it? Yes, these are the important points. If you write this, you will get 2 out of 2 or 3 out of 3 according to the marks it is asked for. Afforestation, reforestation, controlled overgrazing, contour farming, construction of check dams, etc. All these points you must make note, you must learn as well. Now let us know unit number 5, the last lesson of this episode. The title of the lesson is Indian Forest Resource. Dear students, in this lesson we are going to know the meaning and importance of forest, right? Types and distribution of forest in India, conservation of forest, wildlife sanctuaries and national parks, biospheres, etc. Let us know one by one. What is the meaning of forest? A large area of land covered by trees and undergrowth is called forest, correct? Forest, what are the importance of forest? You know very well, right? They provide variety of woods which are very much useful as fuel, timber and industrial raw materials, right? Forests provide fodder for livestock and employment opportunities for the people, right? Indirectly, forest preserves the physical features and check soil erosion. And all these features, all these points show the importance of forest. It makes the climate equable and help to maintain ecological balance. It provides shelter to wildlife and it controls flood, right, etc. Please learn the importance of forest. Let us see the next one, types of forest. There are 6 different types of forest, dear students. You know that the tropical evergreen forest, the tropical deciduous forest, like the scrub forest, likewise desert vegetation and mangrove vegetation, and the 6th one is the mountain vegetation. And in this table we have all 6 types of forest. One by one let us see. The tropical evergreen forest, it receives almost 250 and above rainfall, 250 centimeters and above rainfall. Temperature, it may vary from 26 degree to 30 degrees Celsius. You can find them in Assam, Nagaland, Meghalaya, Andaman Nicobar Islands, etc. and also in the Western Ghats, right? And what are the trees, vegetation that you find here in the tropical evergreen? Teak, ebony, rosewood, mahogany, champa, etc. Very important one, and they look green throughout the year. They are evergreen. It is tropical evergreen forest. Let us go to the second type of natural vegetation, tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest receives 100 to 200 centimeters of rainfall and it's almost about 30 degrees Celsius and above. Trees like teak, sal, sandalwood, kusum, etc. the trees are found here, right? The eastern slopes of the Western Ghat, including Maharashtra, Karnataka, Kerala, in these places you find tropical deciduous forest. And now the third type of scrub forest, grassland, 60 to 100 centimeters of rainfall, 35 degree and above temperature, and the coarse plant, coarse grass, thorny trees, bushes are found here. Where do you find them? Eastern Rajasthan, Punjab and few parts of the Western Ghat you find scrub forest and grassland. Let us go to the fourth type of vegetation, desert vegetation. Dear students, all these points are very important to recall. You are recalling all those which you have learnt, which your teachers have taught you. Now my effort is to help you to recall these points. Hope you are recalling all this which you have revised already. Desert vegetation. Dear students, here temperature, it almost crosses 40 degree and above. The rainfall is very low, 10 to 50 centimeters of rain, right? Thorny bushes, jand, kolko, khair, babul, cacti, kejra,
trees are found here. Parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, in these areas you find desert vegetation. Now let us go to mountain forest. Mountain forest vegetation vary with the altitude, vary with the increasing altitude, right? Higher we go, different type of vegetation and different type of temperature and flora found. Himalayas and to a small extent even in Nilgiris you find mountain forest. Oak, chestnut, ash, beech, pine, deodar, fir, walnut, spruce and variety of flora you find in the mountain forest. Let us see the mangrove forest, the sixth type of vegetation, 30 degrees Celsius and above temperature, 150 centimeters of rainfall, and they are found in the deltas on the eastern coast like Mahanadi, Godavari, Krishna, right. Rhizophora, canes, screw, pipe, palms, sundari trees are found in this mangrove vegetation. These trees roots are submerged underwater, a special feature of mangrove forests. Dear students, let us see the distribution of forests in India. In India, a total area of about 7.74 lakh square kilometer is found with dense vegetation, right. In India, the total forest area is about 7.74 lakh square kilometer. It accounted for about 23.6% of total geographical land, correct. This is much below 33.3 recommended, 3% recommended by the National Forest Policy of 1952. But that means the responsibility, the moral responsibility on everyone is to protect the forest, conserve forest. Let us see the reasons for deforestation. Today, the construction of roads, railway lines, undertaking irrigation projects, industrialization, urbanization, even forest fire, all these are reasons for deforestation. Then how to conserve forest? Very important, dear students. Conservation of forest play a very vital role. Conservation of forest is very important aspect in the examination point of view. What is conservation of forest? The prevention of destruction, over exploitation of forest and its management is called conservation of forest. Then what are the methods to conserve? The methods to conserve forest is control of deforestation, restriction on overgrazing, control of forest fire, right, prevention of encroachment on forest, control forest insects and diseases, controlling illegal cutting down of trees, etc. All these are some of the measures to conserve forest. Now let us go to know about wildlife sanctuaries. There are about 523 wildlife sanctuary. What is wildlife sanctuary? It refers to a place meant for providing protection to wildlife. No killing or capturing of any species. That is very important here. Which are those wildlife sanctuaries? Annamalai and Madumalai in Tamil Nadu, Dandeli, Bhadra, Talakaveri, BR Hills in Karnataka, Periyar, Nagarjuna Sagara, Bharatpur, Ranatambur, like this, all these are wildlife sanctuaries of our nation. Let us go to national parks. What is national parks? And what is national park? An extensive area which is specially protected to preserve its natural beauty, wildlife and forests for public recreation and scientific research, correct? And scientific interest is called national park. Forestry, grazing or agricultural activity is not allowed. About 99 national parks are seen in this country, right? In Karnataka, you have Nagarahole, Bannerghatta and Bandipura, correct? West Bengal, you have Sundarban forest, and Uttarakhand, you have Jim Corbett, and Gujarat, Gir,
and Madhya Pradesh, Khanna National Park, right? Likewise, Rajasthan, Sariska, etc. These are all the national parks of India. Let us go to the next topic, biosphere reserves. What is biosphere reserve, students? The biosphere reserves are a special category of protected area of land or coastal environment. The main objective of biosphere reserve is conservation of forest, research, education, and it is done with the involvement of local people, particularly the people surrounding, right, particularly Adivasis or tribal people and the villagers, right. With the involvement of local people, we conserve forest, which is called biosphere reserves. In India, there are about 18 biosphere reserves. Which are those? They are Nilgiri, Nokrek, Nanda Devi, Manas, Simlipal, Kanchanajunga, Pachmuri, etc. These are biosphere reserves. Dear students, so far I discussed about 5 lessons in geography in the examination point of view. Whatever the points I highlighted today, all are important in the examination point of view. I hope you revise those once again and score good marks. And once again, I bring these questions as one of the important questions, right? Please make note of it, questions for practice. To know the latitude and longitudinal extent of India, you must locate the southernmost and northernmost tip of India, neighboring nations, right? These are all the questions related to the first lesson. Mention any 4 measures to conserve forest. This is the slide about the 5th lesson. Wildlife sanctuaries. How many wildlife sanctuaries you have? National parks of Karnataka. Main objective of biospheres. All these are the questions to recall, questions to practice, questions for practice. What is soil erosion and how do you conserve soil? Right? Mention the main causes of soil. All these we have discussed. Please learn them, revise them. Which factors influence the climate of India? Which are the important seasons of India? Right? The major effects of soil erosion. All these you need to learn. I hope you learn all these question answers without fail and score good marks. I wish you all the best. I see you tomorrow with the remaining lessons. All the best. Thank you. नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी के पुनर्मनन कार्यक्रम के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है महेश एम पाटिल। मैं बेंगलुरु के ओक्कलिगर संघ हाई स्कूल में बतौर हिंदी शिक्षक पिछले 25 सालों से सेवारत हूं। साथियों, हम सबसे पहले व्याकरण के बारे में जानेंगे, प्रश्न पत्र के उस अभिकल्प के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद दोस्तों एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो करना एसएसएलसी बोर्ड की ओर से प्रकाशित एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। उत्तरों को हमें कैसे लिखना है, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसे होगी, तो इसके बारे में हम अपनी कक्षा में जरूर चर्चा करेंगे। परीक्षा के लिए निर्धारित व्याकरणांश है दोस्तों संधि, समास, कारक, विराम चिन्ह, प्रेरणार्थक क्रिया, लिंग, वचन, विलोम, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द और एक शब्द। सबसे पहले है संधि दोस्तों। संधि के बारे में आप भली भांति जानते हैं, आप सीख चुके हैं कन्नड़ में। जो यहां संधि का एक व्याख्या है यहां पे, जहां 2 शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हिम प्लस आलय हिमालय और महा प्लस ईश महेश करके। हिम में अ है और आलय में आ है। अ और आ के मिलन से आ का जो दीर्घ का सृजन, दीर्घ स्वर का सृजन हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार महा, हा में आस्वर है और ईश जो पहला दूसरा पद है, दूसरा पद का जो पहला वर्ण जो है ई स्वर है। आ और ई के मिलन से यहां ए का सृजन हुआ है, आप देख पा रहे दोस्तों। इस प्रकार संधि के 3 भेद है।
तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। सबसे पहले स्वर संधि क्या चीज है? स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों जब दो स्वरों में परस्पर मेल होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि करके कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद है। दीर्घ संधि का मैं यहाँ पे चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पे एक भाषा वैज्ञानिक क्या करता है, सारे स्वरों को, हिंदी के जितने स्वर है उन 11 स्वरों को एक तरफ लेकर लेता है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. तो सबसे पहले अ से औ तक अगर स्वरों को लिया जाए, यहाँ उसने किन किन स्वरों को चुना, अ, आ, ई और उ को चुना. इनके मिलन होने पर क्या कौन से स्वर का सृजन होता है उसे हम देखेंगे. अ और आ के सामने उन्हीं स्वरों के आने से क्या हो गया, वही स्वर दीर्घ हो गया. तो यहां पर आप उदाहरणों में देख पा रहे दोस्तों, देव प्लस आलय, देवालय. यहां अ और आ का मिलन से आ स्वर का सृजन हुआ है. रवि प्लस इंद्र, रवींद्र. देखिए यहां पे दोनों ह्रस्व स्वर मिले हुए हैं. रवि में ह्रस्व स्वर ई है और उसके बाद इंद्र में भी ई है. इन दोनों के मिल से रवींद्र करके हुआ है. उसी तरह गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश. यहां दोनों ह्रस्व स्वर है ना, दोनों ह्रस्व स्वर के मिलने से गुरुपदेश दीर्घ उ का सृजन हुआ है. गुण संधि के अंतर्गत तो सबसे पहले आ को प्रधानता दी गई है. यहां आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आ को प्रधानता दी गई है. उसके सामने ई उ और र के लाने से, यानी दूसरे स्वर के रूप में ई उ और र के लाने से कौन कौन से नए स्वरों का सृजन हुआ है, जैसे मैंने एरो मार्क के जरिए आपको बताया है. देखिए अ और आ के सामने ई और ई के आने से वहां ए स्वर का सृजन हुआ है. आ के सामने उ के आने से ओ का सृजन हुआ है. और आ के सामने री के आने से अर का सृजन हुआ है. जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, महा आ प्लस ईश ई, इन दोनों के मिलन से महेश ए का सृजन हुआ. पर प्लस उपकार, परोपकार. उसी प्रकार महा प्लस ऋषि, महर्षि, वहां अर का सृजन हुआ है. एक बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, अगर री दूसरा स्वर के रूप में आ जाता है तो वह गुण संधि है. इस बात का ध्यान रखिए. तो हमने यहां क्या किया, आ को प्रधानता दी, उसके सामने ई उ और र का प्रयोग किया. अब अगले संधि में क्या करते हैं, इन दूसरे स्वरों को छोड़कर बचे हुए जो जितने स्वर है उनको हम मौका देते हैं. चलिए आगे देखते हैं. वृद्धि संधि है दोस्तों. वृद्धि संधि का जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं यहां पे, देखिए जैसे हमने ई उ र को यहां पे छोड़ दिया, आ के सामने ए ऐ के आने से क्या हो गया, ए का सृजन हुआ. और आ के सामने ओ के आने से क्या हो गया, औ का सृजन हुआ है. जैसे देख पा रहे हैं आप, एक प्लस एक, एक करके, वहां पे क में अ है और उसके सामने ए है, अ और ए के मिलन से ए का सृजन हुआ है वहां पे. उसी प्रकार दोस्तों वन प्लस औषध, वनौषध. तो आप देख पा रहे हैं अ के सामने औ के मिलन से क्या हो गया, यहां औ का सृजन हुआ, जैसे वनौषध करके. इस प्रकार एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, इसे आपको याद रखना होगा. यह वृद्धि संधि का. अब तक हमने क्या किया, आ को हमने प्रधानता दी थी पहला स्वर बनने का. अब पहला स्वर बन रहे हैं कौन, ई उ और र को प्रधानता दी गई और इनके सामने ये सारे दूसरे सभी स्वर आ जाएंगे तो यण संधि का सृजन होगा. इति प्लस आदि, इत्यादि. प्रति प्लस एक, प्रत एक. देखिए अनु प्लस एषण, अन्वेषण. देखिए उ के सामने ए के आने से व का सृजन आप देख रहे हैं वहां पे. उसी प्रकार पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश. त्रा में शुद्ध र है, यहां पितृ में री है. दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, अगर री जो है वह पहला स्वर बनकर आ जाए तो वह यण संधि है. जो आखिरी संधि है स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों, अयादि संधि है. अब तक हमने जिन स्वरों को मौका दिया था प्रधान स्वर बनने का, अब क्या करें, जो बचे हुए दो स्वर है वो है ए ऐ और ओ औ, उनको प्रधानता दी गई, यानी पहला स्वर बनने का. उसके सामने ये सारे स्वर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि का सृजन होगा. जैसे ने प्लस अन, नयन. गई प्लस अक, गायक. पो प्लस अन, पवन.
पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस इक नाविक। आप इन उदाहरणों में देख रहे हैं ए ऐ और ओ पहले है, उसके बाद इन स्वरों के आने से अय, आय, अव, आव ऐसे शब्दों का सृजन होता है। तो आपने देखा है अयादि संधि आखिरी संधि है। इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा टिप आपको दे देता हूं। ये इस प्रकार से संधि जाना नहीं जाता, मगर एक शॉर्टकट है। अक्सर अयादि संधि 3 अक्षरों का एक 3 वर्णों का एक शब्द होता है। इसके बीच या तो य होता है या तो व होता है, इसमें कोई संयुक्ताक्षर नहीं होता। ಮೂರೇ ಮೂರಕ್ಷರದ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಡುವಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಯ ಅಥವಾ ವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಸ್ವರಸಂಧಿಯ 5 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. अगला जो विषय है समास है. समास का मतलब ही है दोस्तों छोटा करना. तो डेफिनेशन हम देखेंगे, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द के निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं. तो सबसे पहले हम सरलता से कठिनाई की ओर अग्रसर होंगे. सबसे पहले देखेंगे दोस्तों द्वंद्व समास. द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या होता है, मैं आपको यहां बॉक्सिंग की चीज दिखा रहा हूं. यानी यहां इसमें आने वाले दोनों पद प्रधान महत्व के होते हैं दोस्तों. जैसे बॉक्सिंग में आप देखते हैं 2 समबल वाले वीरों के बीच में लड़ाई होती है, तो इसी प्रकार यहां आने वाले दोनों पद समान महत्व के होते हैं, उनका समान अस्तित्व होता है. तो यहां आप देख पा रहे हैं पाप और पुण्य, पाप पुण्य, दाल और रोटी, दाल रोटी. दोनों चाहिए हमें, गर्मा गर्म चाहिए, कोई एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दाल भी और रोटी भी. आसानी के साथ इसे पहचाना जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में, इस उदाहरण के बीच में एक योजक चिन्ह होता है. आप देख पा रहे हैं उस उदाहरण में. इसके बाद दोस्तों दूसरा समास है द्विगु समास. द्विगु समास में क्या होता है, इसकी खासियत यह है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है. यह एक आम शब्द है. तो यहां आप उदाहरणों को देख पा रहे हैं कि 5 वटुओं का समाहार पंचवटी, दूसरा पहर 2 पहर, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह. इसके बाद तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसका प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है. तो देखिए जैसे शरण में आगत शरणागत, ಶರಣಾಗಿ ಬಂದವನು. ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಂದವನ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇ ಪದ ಪ್ರಧಾನ. जैसे राजा का महल, यहाँ 2 शब्द है ना, राजा का महल शब्द में हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, उस महल की बात. जैसे ये शब्द आप प्रोनाउंस करेंगे, एक बहुत बड़ा सुंदर महल सामने आएगा. राजा आएगा क्या सामने, नहीं, एक बहुत बड़ा महल हमारे दिमाग में आएगा. तो हम यहां महल की बात कर रहे हैं. दूसरा पद प्रधान है दोस्तों. कारक चिन्हों का प्रयोग करके क्या करते, इस समास का विग्रह करते हैं. आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास. कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या होता है, इसका पहला पद विशेषण होता है दोस्तों, दूसरा शब्द जो है वो विशेष्य होता है. समास के बाद पूरा शब्द क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाता है. अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो बहुत शॉर्ट में एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन करके. तो जैसे कनक के समान लता, कनक लता करके. जैसे नीली गाय, नील गाय बन गया. तो यहां पे दोनों पद क्या है, विशेषण के तौर पर इनका प्रयोग किया गया है. उसके बाद अव्ययी भाव समास. ये थोड़ा बहुत डिफिकल्टी समास, डिफिकल्टी लेवल का है. तो इसके अंतर्गत दोस्तों अव्ययी भाव समास के अंतर्गत क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, यानी अव्यय होता है. अव्यय, न व्यय न होने वाला. और समास के बाद पूरा शब्द अव्यय बन जाता है. जैसे जीवन भर आजन्म, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति. तो आप देख पा रहे दोस्तों, प्रति, आ और यथा जो है वह अव्यय है. तो अव्यय जब जुड़ जाता है तो पूरा शब्द अव्यय बन जाता है. हम वाक्यों में प्रतिदिन शब्द का प्रयोग करते वक्त उसे बदलते नहीं, उसे ज्यों का त्यों हम उसे प्रयोग करते हैं. बहुव्रीहि समास. बहुव्रीहि समास के अंतर क्या होता है, जहां दोनों पद प्रधान न होकर किसी एक विशेष अर्थ के बोध करता हो, तो उसे क्या करते हैं, जब किसी अन्य पदार्थ की वह प्रधानता को बताए तब उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं. यहां देखिए नीलकंठ, ये दोनों शब्द जैसे हम प्रोनाउंस करते, उच्चार करते हैं तो हमें शिवजी की याद आती है. जैसे 3 नेत्र, जैसे ही महादेव की याद आ जाती है. 10 आनन,
ये दोनों शब्द प्रधान नहीं बनते, दोनों शब्द किसी एक विशेष अर्थ को हम बोध करते। जैसे इसका विग्रह जैसे दिखाया गया दोस्तों, इसी प्रकार किया जाता है। जैसे नील है कंठ जिसका नीलकंठ, 3 है नेत्र जिसके त्रिनेत्र, और 10 है आनन जिसके दशानन। अगले अंश की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कारक, कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कारक की जानकारी एक अर्थपूर्ण वाक्य रचना के लिए हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कारक की व्याख्या क्या है देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका जब संबंध सूचित होता है तो उसे कारक कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहां पे दिखाया है, राम ने रावण को तीर से मारा। देखिए ने को से जो है वो कारक प्रसर्ग है। अगर इन्हें हटाकर पढ़ेंगे ना तो कुछ अटपटा लगेगा, वाक्य समझ में नहीं आएगा। राम रावण तीर मारा तो किसे समझ में आएगा ऐसे, है ना। राम ने रावण को तीर से मारा जब आप कहेंगे तो अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते, कारक के 8 भेद है, आप भली भांति जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी करने वाला। यहां पर ने प्रसर्ग है इसका। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, सिर्फ भूतकाल में ने का प्रयोग किया जाता है। देखिए वर्तमान काल के इस वाक्य में और भविष्यत काल के उस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ अगर सकर्मक क्रिया हो तो ने का प्रयोग कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे राम ने फल खाया, यह भूतकाल में है। कर्म कारक के अंतर्गत दोस्तों कर्म सकर्मक के साथ, कर्म के साथ को प्रसर्ग लगता है। तो आपको यह लग रहा हो कि यहां पहले वाक्य में फल के साथ को नहीं है और दूसरे वाक्य में रावण के साथ को लगा है। मैं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर आपको बता रहा हूं दोस्तों, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಪ್ರಾಣಿವಾಚಕ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೋ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಅಪ್ರಾಣಿವಾಚಕ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋ ಬರಬಾರ್ದು. ರಾಮ್ ನೆ ಫಲ್ ಕೋ ಖಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮ್ ನೆ ಫಲ್ ಖಾಯಾ, मैंने पानी पिया ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. मैंने पानी को पिया, मैंने सिनेमा को देखा ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. तो इसी प्रकार राम ने रावण को मारा. तो आगे बढ़ते हैं करण कारक. करण कारक का जो सिंबल जो है वह से है. तो करण कारक के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, चाकू से फल काटा, एक साधन का प्रयोग है. मैं कलम से लिखता हूं, वहां भी एक साधन है. उस खिड़की से देख सकते हैं, यहां से का मतलब है द्वारा, थ्रू करके. अगर अंग्रेजी में बताया जाए चाकू से, बाय नाइफ. मैं कलम से लिखता हूं विथ द पेन. उस खिड़की से देख सकते हैं थ्रू द विंडो करके, बाय, थ्रू, है ना, विथ करके ऐसे अर्थ में प्रयोग हो तो करण कारक करके आसानी से इसे पहचाना जा सकता है. और आगे बढ़ते संप्रदान कारक दोस्तों. संप्रदान कारक का जो सिंबल है को और के लिए, यहां देखिए एक बात मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, जब किसी को कुछ दिया जाता है तो को का प्रयोग होता है ना. तो किसी के लिए जब हम कुछ करते हैं तब के लिए का प्रयोग होता है. जैसे आप देख पा रहे हैं, उस बच्चे को खाना दो, उस कूली को पैसे दो, यार मेरे पास छुट्टे नहीं है करके. तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, आप कहेंगे सर यहां बच्चा भी प्राणीवाचक है, कूली भी प्राणीवाचक, उसके साथ को है, तो यह क्यों नहीं कर्म कारक बनता. मैं यहां पर यह बात विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, वाक्य का जो मतलब है ना दोस्तों, मतलब पर ध्यान देना होगा. बच्चे को खाना दो, कूली को पैसे दो, अध्यापक ने सुरेश को किताब दी, है ना, सुरेश को यहां संप्रदान कारक बनता है दोस्तों. जब देने की बात होती है तब को आ जाए तो वह क्या है, संप्रदान कारक है. तो आप भली भांति के लिए का तो आप जानते हैं, आसानी के साथ पहचाना जा सकता है कि यह संप्रदान कारक का ही चिन्ह है करके. संबंध कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है. हम अक्सर दक्षिण भारतवासी जो है इस काके की के प्रयोग में क्या करते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं दोस्तों. तो संबंध कारक का जो चिन्ह है का के की, इस बात का ध्यान रखना होगा. अगर कन्नड़ का प्रयोग अगर आप दिमाग में लाएंगे तो गलतियां जरूर करेंगे दोस्तों. यहां में देखिए ये राजू है और ये जो है उषा है. यहां राजू और उषा के सामने क्या है, का है. तो राजू और उषा के वहां होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों. का के सामने कौन सा शब्द है उस शब्द के ओर ध्यान रखना होगा आपको. यहां आप देख पा रहे दोस्तों, जैसे भाई जो है पुल्लिंग है, भाई जो है वह एक वचन है. अगर जो प्रयोग करने वाला शब्द अगर पुल्लिंग एक वचन है तो का प्रयोग करें, चाहे वहां पे राजू का भाई हो या उषा का भाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों. ठीक है. तो उसी प्रकार किसी और अप्राणीवाचक शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों.
ठीक है। और आगे देख रहे हैं के का प्रयोग कहां करें। के का प्रयोग कहां करते वक्त मैंने यहां पे लिखा है पिता। पिता का मतलब है पुल्लिंग। हम पिता को कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं करते। अगला शब्द यानी अगला शब्द अगर पुल्लिंग बहुवचन रहा तो के का प्रयोग करना जरूरी है। तो देखिए, राजू के पिता, उमा के पिता, लड़कों के पिता, लड़कियों के पिता, दोस्तों के पिता, ठीक है। वहां पे अगर कुछ भी प्रयोग करे के पीछे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। तो पुल्लिंग बहुवचन रहा तो के का प्रयोग करना है आपको। की का प्रयोग कहां करना है दोस्तों। की का प्रयोग तभी करे जो अगला शब्द स्त्रीलिंग में हो, चाहे वह एक वचन में हो या बहुवचन में, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब देखिए, राजू की बहन, उषा की बहन, लड़कों की बहन, बच्चों की बहन, तो इस प्रकार नानी की बहन, नाना की बहन, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि पुल्लिंग एक वचन रहा तो का, पुल्लिंग बहुवचन रहा तो के, और स्त्रीलिंग एक वचन या बहुवचन रहा तो की का प्रयोग करना होगा, ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अपादान कारक। यहां भी इसका संबंध, इसका जो चिन्ह है जिससे है पेड़ से फल गिरा, जहां सेपरेशन होने की बात आती है, अलग होने की बात, वह मुझसे होशियार है। इस वाक्य में मैं क्या कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। जब तुलना की जाती तब से आता है तो वह अपादान कारक है। उसी प्रकार राजू मैसूर से आया, राजू केम फ्रॉम मैसूर, अगर इस अर्थ में उसका प्रयोग करे तो क्या होता है, वह अपादान कारक है। तो अधिकरण कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। परीक्षा के अंतर्गत आसान सा प्रश्न अगर कोई प्राश्निक चुनता है तो अधिकरण कारक का प्रयोग करता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसके चिन्ह जो है पर और में है। तो मेज पर किताब है, पर अंदर में ले, और मछलियां पानी में तैरते, में मीन्स इन, अंदर करके। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसान है। तो ऐसे उदाहरण परीक्षा में दिए जाते हैं और वहां पर एक रिक्त स्थान देकर उन कारक चिन्हों को भरने के लिए आपको कहा जाता है। जो आखिरकार एक उदाहरण है वह है संबोधन कारक। जो जब हम किसी का संबोधन करते हैं, ये एक ही कारक है जो कर्ता से पहले आता है दोस्तों वाक्य में। जैसे हे, अरे, अजी, अहो करके जब बुलाते किसी, हे राम, बटवा कहां गिर गया करके, अरे तुम कब आए, तो देखिए, तो इस प्रकार संबोधन कारक वाक्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है। तो विराम चिन्हों के अंतर्गत, विराम चिन्ह क्या चीज है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमें वाक्य के बीच में या अंत में रुकना पड़ता है ना। इस रुकावट को संकेत देने वाले उन लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। पूर्ण विराम कहाँ होता है, जब कोई आशय का अंत हो जाता है, कोई विचार अंत हो जाता है तो वहां पूर्ण विराम लगता है। हिंदी का पूर्ण विराम क्या है, एक खड़ी पाई का चिन्ह है। जैसे आप देख पा रहे हैं, बसंत एक ईमानदार बालक था, तो वाक्य का अंत हुआ तो अंत में पूर्ण विराम लिखना पड़ता है आपको। उसके बाद दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, जैसे इसका नाम ही बताता है, जैसे अल्प, थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं तो अल्प विराम लगता है। जब मतलब एक ही तरह के अनेक शब्द जब वाक्य में आ जाए, हाँ या नहीं से जब वाक्य की शुरुआत होती तो हाँ या नहीं के अंत में लगाना पड़ता है। जैसे दिल्ली, बंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आदि भारत के प्रमुख शहर हैं। उसी प्रकार राजू आया, खाना खाया, सो गया। जैसे राजू आया के बाद कॉमा, खाना खाया के बाद कॉमा, सो गया के बाद पूर्ण विराम आपको लगाना पड़ता है। और उसी तरह हाँ, तुम आज ही चले जाओ, देखिए हाँ के बाद विराम चिन्ह लगाए दोस्तों। प्रश्न सूचक चिन्ह आप भली भांति जानते हैं, जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहां प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कहां जा रहे हैं, कब लौटेंगे, तो वहां पे अंत में प्रश्न चिन्ह लगेगा दोस्तों। और विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक यानी अंग्रेजी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी करके कहते हैं। कन्नಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ। आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, भय, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही चिन्ह है दोस्तों। या तो ये वाक्य में एक बार लगता है, या तो वाक्य के बीच में, या तो वाक्य के अंत में लगता है। जैसे देखिए, अरे ये क्या कर रहे हो तुम करके, देखिए अरे के बाद लगा और उसके बाद वाह वाह, आपने तो कमाल कर दिया करके, तो वाक्य के अंत में लगा। तो इस प्रकार मैं व्याकरण के कुछ प्रधान बातों का जिक्र मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया। तो बाकी के जो छोटे मोटे अंश हैं प्रश्न पत्र के विवरण देते समय जरूर हम उसका जिक्र करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पाटिल।
मैं बेंगलुरु के वकीलगिर संघ हाई स्कूल में बतौर हिंदी शिक्षक पिछले 25 सालों से सेवारत हूँ। मेरा नाम हनुमंत राजू है। मैं सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज प्रौढ़शाला विभाग कनसवाड़ी दोड्डबल्लापुर तालुक बेंगलुरु ग्रामांतर जिले में काम कर रहा हूँ। प्रश्न प्रकार की दृष्टि से अंक बार इस प्रकार होता है। ठीक है सर। बहुविकल्पीय प्रश्न कुल मिला के 8 प्रश्न होते 1 अंकों के दोस्तों। इसी के अंतर्गत व्याकरण के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद अनुरूपता के प्रश्न होंगे गद्य और पद्य से जुड़े, उसमें 4 प्रश्न होते हैं 1 अंक के होंगे। इसके बाद एक वाक्य का 4 प्रश्न होते हैं 1 अंक के लिए। इसका उत्तर एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आगे 2-3 वाक्यों का प्रश्न है, 8 प्रश्न होंगे 2 अंकों के लिए। इसके अंतर्गत गद्य पद्य और पूरक वाचन के अंतर्गत प्रश्न पूछते हैं। 3 या 4 वाक्यों के प्रश्न होते हैं, लगभग 8 प्रश्न होते हैं गद्य और पद्य के अंतर्गत विभाजित। उसके बाद अनुवाद का भी एक प्रश्न होगा जो 3 अंक के लिए एक गद्यांश दिया जाएगा। पटेल सर जी, ये 8 और अनुवाद के लिए 1 प्रश्न है, ये दोनों मिलाकर 9 प्रश्न होते हैं। इसके अंतर्गत 9 प्रश्न पूछते हैं। जी, कुल मिलाकर 3 अंकों के 9 प्रश्न इस प्रकार होते हैं। उसके बाद दोस्तों 4-5 वाक्यों में लिखने के लिए 2 बड़े प्रश्न होते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से। गद्य का एक प्रश्न जो होता है वह बहुत ही विस्तृत जानकारी लिखने के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए विकल्प दिया जाता है आपको। और पद्य के अंतर्गत कविता कंठस्थ के लिए जिन कविताओं को निर्धारित किया गया है उनमें से एक कवितांश को इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। आगे का प्रश्न है अपठित गद्यांश के अंतर्गत 4 प्रश्न 1 अंक के होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। इसके बाद निबंध रचना है। निबंध रचना के अंतर्गत 3 अंश देते हैं। इसके अंतर्गत 1 अंश को लेकर संकेत बिंदु के अनुसार निबंध रचना करना है। जी, इसके अंतर्गत 4 अंक निबंध के लिए 4 अंक है दोस्तों। उसके बाद पत्र लेखन होगा। पत्र लेखन के अंतर्गत 2 विकल्प आपको दिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत पत्र होगा और एक व्यवहारिक पत्र होगा। उनमें से एक का चयन करके आपको क्या करना है, एक पत्र का प्रस्तुतिकरण करना है। पत्र लेखन के लिए 5 अंक है। कुल मिलाकर कितने प्रश्न होंगे पटेल सर जी? कुल मिलाकर 38 प्रश्न होंगे दोस्तों। 38 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र इस प्रकार बनता है सर। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का जो ये है शुरुआत होती है, जैसे कर्नाटक माध्यमिक परीक्षा मंडल की ओर से प्रदर्शित यह एक प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र की शुरुआत बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होती है, तो इसके अंतर्गत पहले व्याकरण के प्रश्न शुरुआत होंगे। मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक शब्द का अन्य लिंग है। जी, इसका विकल्प होगा ए लेखिका, बी लेखन, सी लेखकी, डी कवि। उसका उत्तर क्या होगा पटेल सर जी? लेखक का अन्य लिंग शब्द होता है लेखिका, यानी इका प्रत्यय से अंत होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ये लेखिका जो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, देखिए जैसे ए डंडे, बी आंख, सी बातें, डी आंखें करके। इनमें से तीनों के तीनों लगभग लग रहे हैं कि बहुवचन है, उसमें से एक वचन है, तो उत्तर होगा सर जी? सही उत्तर होगा बी आंख। जी, आंख जो है वो एक वचन है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, रात शब्द का विलोम रूप है, तो उसके विकल्प होंगे ए सुबह, बी प्रातःकाल, सी शाम, डी दिन। तो इसका उत्तर होगा सर जी? उत्तर है डी दिन। देखिए इसमें जो विकल्प आपको दिखाई दे रहे थे बहुत ही करीबी उत्तर लगते हैं इसमें, सुबह, प्रातःकाल, शाम। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। अगला प्रश्न है, सुनना। सुनना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है, तो विकल्प इसके होंगे तो ए सुना, बी सुन, सी सुनवाना, डी सुनाना करके। सही उत्तर है डी सुनाना। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनवंतर शब्द में संधि है, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि मनु प्लस अंतर मनवंतर, यह यण संधि का उदाहरण है। इसमें ऑप्शंस दिए गए, ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी अयाद संधि। तो इसका सही उत्तर होगा सर जी? उत्तर है सी हेंड संधि। जी, तो अगला प्रश्न है, दोपहर शब्द इस समास का उदाहरण है।
विकल्प है ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर होगा सी द्विगु समास। जी। अगला प्रश्न है शशि डैश माता कुश थी, रिक्त स्थान में निम्न कारक आता है। विकल्प होगा ए के, बी की, सी को, डी के। इसका सही उत्तर क्या है सर जी? इसका सही उत्तर होगा बी की। कारक से जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर ऐसे पूछे जाते दोस्तों, कारकों के नाम अक्सर नहीं पूछे जाते, कारक चिन्हों को इस प्रकार विकल्प में देकर रिक्त स्थान की भर्ती करने के लिए कहा जाता है। आगे का प्रश्न है मोहन एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह क्या होगा? विकल्प है जी, विकल्प ऑप्शन ए में प्रश्नवाचक चिन्ह है, बी में पूर्ण विराम है, सी में विस्मयादिबोधक चिन्ह है और डी में एक अर्धविराम का चिन्ह है। तो वाक्य को पढ़ने के बाद आपको लगता है जब एक वाक्य अंत हो जाता है तो वहां क्या लगना चाहिए दोस्तों? पूर्ण विराम लगना चाहिए। तो देखते हैं उत्तर है बी पूर्ण विराम चिन्ह। तो व्याकरण के प्रश्न बहुविकल्प के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। तो हम अगले मुख्य प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप जी तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। एक एक अंक के लिए 4 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है कश्मीरी सेब कहानी मेरा बचपन डैश करके। यहां पहले 2 शब्दों का संबंध दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा। कश्मीरी सेब एक कहानी है करके बताया गया, तो एक साहित्यिक विधा है। तो मेरा बचपन कौन सा साहित्यिक विधा होगा? आंसर होगा आत्मकथा। जी। अगला प्रश्न देखेंगे। रोबोट प्रदीप मुखोपाध्याय और दुनिया में पहला मकान डैश करके दिया गया है। तो रोबोट के लेखक है, रोबोट पाठ के लेखक है प्रदीप मुखोपाध्याय और दुनिया में पहला मकान जो ये है इसके लेखक है डॉक्टर विजया गुप्ता जी। आगे का प्रश्न मातृभूमि देश प्रेम की सीख कश्मीरी सेब डैश है। तो यहां पे पहले 2 शब्दों का जो संबंध है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है? तो मातृभूमि पद्य से हमें देश प्रेम की सीख मिलती है। ठीक है। कश्मीरी सेब से हमें कौन सी सीख मिलती है देखेंगे उत्तर के रूप में। उत्तर है खरीदारी की सीख मिलती है। जी। आगे का प्रश्न है नंद और यशोदा गोरा, बालकृष्ण डैश। तो बालकृष्ण का रंग काला होगा। जैसे आप देख पा रहे जो पहले 2 शब्दों का संबंध है रंग की बात यहाँ बालकृष्ण का रंग है काला या श्याम करके आप लिख सकते हैं। अगला मेन जो है वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए करके। जो यहाँ पे गद्य और पद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक पूर्ण वाक्य में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है दोस्तों। कितने प्रश्न होंगे सर? 1 अंक के 4 प्रश्न होते हैं। क्या पहला प्रश्न है बचेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त है? आंसर होगा बचेंद्र पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का गौरव प्राप्त है। जी। आगे का प्रश्न है दोनों दोस्तों ने हाथी से किसके बारे में चर्चा की? तो यह जो प्रश्न है दुनिया में पहला मकान पाठ का है। दोनों दोस्तों ने हाथी से मकान बनाने के बारे में चर्चा की। आगे का प्रश्न है कवि भारत माता से क्या निवेदन कर रहे हैं? इसका उत्तर होगा कवि भारत माता से जग का रूप बदलने के लिए निवेदन कर रहे हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों तुलसीदास जी के अनुसार आंतरिक और बाह्य शुद्धि कैसे होती है करके। इसका उत्तर होगा राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य की शुद्धि होती है। आगे का मुख्य प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। जी। सबसे पहला प्रश्न हम देख पा रहे हैं बेईमानी के बारे में प्रेमचंद जी की राय क्या है करके। ये कश्मीरी सेब पाठ से दोस्तों, इसमें प्रेमचंद जी बताते हैं आदमी अवसर मिलने पर बेईमानी करता है, बेईमानी का अवसर देना सहयोग देने के बराबर है करके एक संदेश देते हैं। छात्रों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, पूरा वाक्यों में लिखना है लेकिन वाक्यों में इस अंशों पर ध्यान देना आवश्यकता है। जी, पूरे वाक्य में उत्तर देना जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन कलाम को किन किन विषयों के बारे में बताते रहते थे? इसका उत्तर है जलालुद्दीन साहब अब्दुल कलाम को शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोज,
समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। तो यहाँ पर भी 4 अंश बताए गए हैं, प्रधान अंश है जो अंक पाने के लिए प्राप्त है, सही है। फिर भी इनका उत्तर आपको क्या करना है, वाक्यों के अंतर्गत आपको पूर्ण वाक्यों में लिखना है। जी जी। आगे का प्रश्न है, लेखक परसाई जी का स्वागत कैसे किया गया? उत्तर होगा, रेलवे स्टेशन पर लेखक परसाई जी का खूब स्वागत हुआ, उन्हें बड़ी बड़ी फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया करके आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर चढ़ने की पूर्व तैयारी कैसे की? तो देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, एवरेस्ट चढ़ने की पूर्व तैयारी उसने कैसे की? जो उस दिन वह सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और हल्का सा नाश्ता करके वह अपने तंबू से एवरेस्ट की यात्रा पर वह निकल पड़ी करके आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है, मातृभूमि कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि की अभिलाषा क्या है? उसका उत्तर होगा, ज्ञान और न्याय के पथ पर चलकर जग का रूप बदल दे, जिससे जय हिंद का नाद विश्व भर गूंज उठे। अगला प्रश्न है, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है ना? तो इस कविता में आप देखते होंगे बलराम के प्रति उसकी नाराजगी व्यक्त होती है पूरी कविता में, मगर जहां पर एक बार वो माता यशोदा के प्रति भी नाराज है, वह कहता है, मां हमेशा तुम मुझे ही मारती हो, भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती। अगला प्रश्न है वो पूरक वाचन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए जाएंगे आपको एक ही पाठ से। प्रश्न संख्या जो 23 जो है, शनि एक सबसे सुंदर ग्रह पाठ से ही पूछा जाता है, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प होंगे, इसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो सबसे पहला जो ऊपर का प्रश्न है, शनि एक सुंदर ग्रह है कैसे, अथवा शनि को ठंडा ग्रह क्यों कहते हैं करके। तो इसके अंतर्गत दोस्तों शनि के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं, ये वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वलय शनि के गले में सुंदर हार के समान दिखाई देते हैं करके। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, शनि को ठंडा ग्रह क्यों कहते हैं करके। तो यह प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, शनि सूर्य से अत्यंत दूर है, लगभग 150 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, अतः क्या होता है, बहुत कम सूर्य ताप शनि ग्रह पर पड़ता है, इसलिए शनि का तापमान शून्य के नीचे लगभग 150 डिग्री के आसपास पाया जाता है, यानी -150 डिग्री के आसपास इसका वातावरण पाया जाता है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह करके इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न है, यह पूरक वाचन के अंतर्गत ही पूछा जाता है। उसमें 2 प्रश्न है, हमें सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास क्यों करना चाहिए जी। अथवा मीना मैडम के अनुसार देश का कल्याण कैसा संभव है। इसका उत्तर होगा, पहले का प्रश्न का उत्तर, सत्य एक चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है, सत्य की नाव से भवसागर को पार कर सकते हैं। अगला उत्तर है, तो मीना मैडम के अनुसार देश का कल्याण कैसे संभव है। इसका उत्तर होगा, मीना मैडम कहती कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, नागरिक कर्तव्यों का पालन करने से ही देश का कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा करके मीना मैडम कहती है। ये इसका जवाब है। अगला मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। इसके अंतर्गत 8 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा तथा संस्कृति के लिए कन्नड़ साहित्यकारों की देन क्या है। पाटिल सर जी, इसका उत्तर क्या होगा सर। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्मा देवी, अलम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने प्रेम दया की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि कवियों ने भक्ति नीति के गीत गाए। पंप, रन्न, पुन्न आदि महान कवियों ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है और आधुनिक काल के 8 कन्नड़ के साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। इस प्रकार कई सारे अंशों को यहाँ पे बोर्ड पर आपको प्रस्तुत किया गया है। इन अंशों में खास तौर पर 3 या 4 अंशों को आप बहुत अच्छी तरह से अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। आमतौर पर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, अभिव्यक्ति के प्रश्न जितने 3 और 4 और 5 अंकों के प्रश्न होंगे, उनमें आपकी जो भाषा, वाक्य रचना आदि का आकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे का प्रश्न है, बसंत के बारे में आप क्या जानते हैं
अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही एक प्रमुख प्रश्न है, अक्सर आप पुराने प्रश्न पत्रों में इसे पाएंगे। तो बसंत एक गरीब शरणार्थी बालक था। वह भिखू अहीर के घर में उसने शरण पाई थी। वह बड़ा ही परिश्रमी और स्वाभिमानी बालक था। उसका एक विशेष गुण है, घायल होने के बावजूद उसने क्या किए, होश आने के बाद अपने भाई के हाथ में राजकिशोर के पैसे लौटाकर वह क्या करता है, वह अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार बसंत का चरित्र चित्रण आप इन शब्दों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संचार व सूचना के क्षेत्रों में इंटरनेट का क्या महत्व है? जी, तो इसके अंतर्गत दोस्तों विश्व भर के समाचार को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र आदि को हम आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके बिना संचार व सूचना क्षेत्र दोनों ही ठप पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार यह इंटरनेट का महत्व है दोस्तों। आगे का प्रश्न है, रोबोनिल साधुराम के बारे में क्यों चिंतित था? इसका उत्तर होगा रोबोनिल के कारण साधुराम की नौकरी खतरे में थी, है ना। वह यह रोबोटिकी नियम के विरुद्ध भी था, क्योंकि रोबोट का कहना मानना था कि कोई रोबोट इंसान की नुकसान का कारण न बने, और यह मानवीय दृष्टि से भी यह गलत था। तो इस प्रकार उस रोबोट की दुविधा को आप अपने भाषा में, अपने शब्दों में इस कहानी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है इसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाल शक्ति पाठ के अनुसार छात्रों की टोली का कर्तव्य क्या था? इसमें बाल शक्ति की टोली जो आपस में कुछ नियम बना लेते हैं, उन नियमों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। जैसे नियमित रूप से स्कूल न जाने वाले और पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चों पर ध्यान रखना, स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना, गांव की गंदगी को दूर करना, और गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपना, और गांव को हरा भरा रखना आदि ये प्रमुख अंश है। इनमें से 3 या 4 अंशों की गणना करके आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कवि दिनकर जी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना को कैसे दर्शाया है? तो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मानव की भौतिक साधना का वर्णन जो शुरुआत की पंक्तियों में कवि करता है उस बात का जिक्र है। तो प्रकृति के हर तत्व पर आज विजयी पुरुष आसीन है। मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। नदी सागर पर्वत को वह एक समान लांघ सकता है। आधुनिक मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। वह अंतरिक्ष से पाताल तक सब कुछ विचारों की जानकारी रखता है। इस प्रकार आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कवि कविता में करते हैं कहकर इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समय की पहचान कविता का आशय क्या है? समय अत्यंत अनमोल है। समय का महत्व धन से भी ज्यादा है। यह ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। हमें जो काम करने का जो अवसर प्राप्त है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए करके समय के महत्व को आप अपने शब्दों में आप प्रकट कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्हा करतार, संत हंस गुण गहई पये परि हरि वारी विकार। इसका भावार्थ होगा जो इस प्रकार होगा दोस्तों। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने संत अर्थात सज्जन के स्वभाव का परिचय देते हुए कहा है कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन गुण दोष मिलाकर बनाया है, लेकिन हंस पक्षी की तरह हमें भी विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को ही अपनाना चाहिए, बुराई को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए करके तुलसीदास जी इसमें संदेश देते हैं। पाटिल सर जी, इसके अंतर्गत कैसे भावार्थ लिख सकते हैं? बच्चे को कुछ अंश आप लोग बता सकते हैं? जी, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಪದ್ಯದ ಶಬ್ದಗಳಿರ್ತದೆ, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಳವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। अगला मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। गद्यांश दिए गए हैं। ईमानदारों के सम्मेलन के मुख्य अतिथि लेखक हरिशंकर परसाई जी थे। उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्घाटन शानदार हुआ।
कन्नड़ में इसका अनुवाद इस प्रकार होगा दोस्तों। लेखक ಹರಿಶಂಕರ ಪರಸಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಅಥವಾ ನೆರವೇರಿತು ಅಂತಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾವಾನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. इसी प्रकार आप अंग्रेजी में भी इसका भावानुवाद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए करके। तो पहला प्रश्न है तो गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए अथवा गिल्लू और महादेवी के संबंध का वर्णन कीजिए करके। इसका जवाब होगा गिल्लू स्वयं हिलाकर अपने झूले में झूलता था, लेखिका के घर में उछलता कूदता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर के पास आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता था। लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। प्रतिदिन गिल्लू लेखिका के साथ एक ही थाली में खाना खाया करता था। और अगला प्रश्न जो है गिल्लू और महादेवी वर्मा के जो संबंध का वर्णन है, ये भी एक बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत पूरे पाठ के अंतर्गत गिल्लू और महादेवी वर्मा के जी के संबंध के बारे में ही बताया गया है। जैसे पशु पक्षियों से महादेवी वर्मा को अत्यंत प्रेम और लगाव था। गिल्लू के प्राण बचाकर उन्होंने घर में उसे पाला पोसा था। घर के अन्य पशु पक्षियों से ज़्यादा गिलहरी से उन्हें ज़्यादा लगाव था। पूरे 2 साल तक उसकी देखभाल की और दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाया करते थे। इसके साथ जुड़े हैं और भी कई सारे अंश जो अगर आपके दिमाग में आते हैं तो उनका भी जिक्र करके आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं दोस्तों। अगला मुख्य प्रश्न है निम्नलिखित कंठस्थ कविता भाग को पूर्ण कीजिए। जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसके अंतर्गत एक कवितांश को दिए गए हैं। तो कविता का कवितांश इस प्रकार है दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम करके। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए करके बताया गया है। एक गद्यांश का प्रस्तुतिकरण है। साहित्य 2 प्रकार में दिखाई देता है, शिष्ट साहित्य और जनपद साहित्य। ज्ञानी और शास्त्रज्ञ जिस साहित्य का सृजन करते हैं उसे शिष्ट साहित्य कहा जाता है। शिष्ट साहित्य लिखित होता है, जनपद साहित्य अलिखित होता है। इसकी रक्षा मौखिक परंपरा से होती है। ज्यादातर जनपद साहित्य ग्रामों में जन्म लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते दोस्तों। तो पहला प्रश्न है साहित्य के 2 प्रकार क्या है। तो साहित्य के 2 प्रकार शिष्ट साहित्य और जनपद साहित्य है। अगला प्रश्न है शिष्ट साहित्य किसे कहते हैं। जो साहित्य ज्ञानी और शास्त्रज्ञ सृजन करते यानी लिखते हैं उसे शिष्ट साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है अलिखित साहित्य कौन सा है। अलिखित साहित्य सभी जानते हैं, जनपद साहित्य अलिखित साहित्य है। अगला प्रश्न है जनपद साहित्य कहाँ जन्म हुआ है। जनपद साहित्य का जन्म ग्रामों में जन्म हुआ है। अगला मुख्य प्रश्न है निम्नलिखित किसी एक विषय के बारे में दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 15 से 20 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो यहाँ सबसे पहला जो विषय दिया गया है वह स्वास्थ्य और स्वच्छता है। इसके आधार बिंदु इस प्रकार है, प्रस्तावना, स्वास्थ्य का महत्व, आवश्यकता और उपसंहार। इसके संबंधित पटेल सर जी स्पष्ट रूप से आप बता सकते हैं कैसे लिख सकते हैं निबंध। निबंध के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि निबंध के अंतर्गत 3 प्रमुख पड़ाव है। सबसे पहले निबंध का प्रस्तावना है, उसके बाद विषय का विश्लेषण है और उसके बाद निबंध का उपसंहार देना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों प्रस्तावना के अंतर्गत विषय के बारे में शुरुआत में थोड़ी बहुत जानकारी देनी है। जो विषय की शुरुआत है वो पहला चरण है। उसके बाद विषय विश्लेषण के अंतर्गत जैसे यहाँ पे महत्व और आवश्यकता दिया गया है ना, उसको क्या करेंगे, उसका विश्लेषण आप करते जाएंगे। उसके समर्थन में उसके विरोध में क्या करेंगे, आप विषय का विवरण देंगे। और उपसंहार के अंतर्गत दोस्तों क्या करना है, आपके जो विचार है तो उसको सीधे विचारों को क्या करेंगे, उपसंहार में आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विषय के बारे में एक पत्र लिखिए। सबसे पहले अपनी बहन की शादी के कारण
2 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक के नाम पर पत्र लिखिए, अथवा पढ़ाई के बारे में सलाह देते हुए अपने भाई के नाम पत्र लिखिए। तो पत्र लेखन के इसके अंतर्गत तो पहला जो नमूना आप देख पा रहे हैं यह एक व्यावहारिक पत्र है, यानी एक छोटी पत्र का एक नमूना है और इसी प्रारूप में आपको लिखना है, इसका प्रस्तुतिकरण करना है। तो अगला जो विषय है वो एक व्यक्तिगत पत्र है, भाई के नाम पर लिखने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार प्रश्न पत्र के जो पूरे कुल मिलाकर 38 प्रश्न हैं, उन प्रश्न पत्रों का जो उत्तर कैसे लिखना है उस बारे में मैं और मेरे जो साथी ने क्या किया, हमने बहुत अच्छी तरह से इसका प्रस्तुतिकरण किया। आशा है आप सबको यह अच्छा लगा होगा। कक्षा जो है यहीं पे समापन हम करते हैं। तो हमें इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಭಾಗವ ಹೆಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪಾಸು ಫೇಲು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಜೀವನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂಕಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ